Hello students, welcome to the maths class. Yesterday we have dealt with the Roman numerals revision just because after this summer vacation that chapter was a bit hard also and it needs revision also. That's why. So after this long time, let's start with the new chapter, that is chapter number 5, multiplication. Multiplication, after hearing this word, a kind of question arises that what was the need to have the multiplication in our mathematics book? नहीं, कभी कभी दिमाग में नहीं आता ये क्वेश्चन कि क्यों, क्या ज़रूरत थी मल्टीप्लिकेशन की? हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा तो नंबर के बारे में जाना, तो अब मल्टीप्लिकेशन भी जानना है। देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, सो लेट्स स्टार्ट बाय हैविंग एन एग्जांपल। देखिए, आपने एडिशन पढ़ा है तो एक एग्जांपल लेते हैं दैट आई हैव 5 मैंगोज फॉर माई सेल्फ, माई, देन दैट विल बी माई, बट आई एम हैविंग 5 more friends with me sitting in the drawing area, drawing room. तो मुझे उन्हें भी 5 मैंगोज देने हैं। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट that how many mangoes do we need in total, right? So we'll add my 5 mangoes and then the next 5 mangoes for all the rest of the 5 friends. So when we add, we get 30. Answer has to be 30. That is the total number of mangoes that we need is 30 mangoes. So you are seeing the numbers being repeated and you are seeing the addition symbol is being repeated. That's why what it is known as multiplication will be known as repetitive what? Which fundamental operation is going on? Which symbol? Plus ka symbol hai na, means addition. That way it will be called as repetitive addition. Okay, so now you know that multiplication is also known as repetitive addition, or you can say repetitive addition is also known as multiplication. So if the question arises in the examination time, then what is the other name for multiplication? Then you can simply answer that repetitive addition is the other name for the multiplication, right? So ये रिपीटेटिव एडिशन तो हमने देख लिया। क्योंकि हमने एडिशन पढ़ा है तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर को जितनी बार ऐड करोगे उसके बाद जो नंबर आएगा तो वो रिपीटेटिव एडिशन होता है। अब इतना लंबा मीन्स 1 2 3 4 5 6 लाइन्स, देन 5 टाइम्स एडिशन सिंबल, देन 2 लाइन्स, देन यू आर राइटिंग 30। इतना बड़ा सा पैटर्न करने के बजाय हम करेंगे क्या, और आप इसको कैसे लिख सकते हो कि आपने कितने नंबर ऑफ मैंगोज थे 5 एंड नंबर ऑफ पर्सनस कितने हैं 1 2 3 4 5 6, उसको आप जितने नंबर ऑफ मैंगोज हैं जितने नंबर ऑफ पर्सनस हैं इनटू किया, आंसर कितना आया 30। अब देखिए 1 2 3 4 एंड 5 कैरेक्टर्स या 3 चीज़ इधर, एक इक्वल टू एंड देन 30, मीन्स सिर्फ 5 कैरेक्टर्स आपने लिखे और आपको डायरेक्ट वही आंसर मिला जो आपने इतना लंबा एडिशन करने के बाद आपको आंसर मिला है ना। सो वाई वी नीडेड मल्टीप्लिकेशन टू बी एडेड in the mathematics group? Just because instead of adding the numbers repetitively, we can simply multiply the number with the number of times that we need. 6 बार प्लस करने से बजाय अच्छा है कि हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें एक लाइन में आंसर मिल जाएगा। अभी आया आपको समझ में? आई होप दैट यू गॉट इट नाउ। सो नाउ जस्ट बिकॉज वी न्यू the reason why multiplication has been added, now we can simply draw a line and then we can start up with the hard words of the chapter, right? तो आप hard words लिखेंगे chapter के, ठीक है? So now is the time that आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, यहाँ कॉपी, पेंसिल, scale, rubber, sharpener, everything should be ready every time and in every class. Now you just copy the thing till here, pause the video and copy it down, then we'll be writing the hard words. Okay? Okay class, so here you are having the hard words. You just copy all the hard words in your fair copy of maths. Here first listen out the hard words. There are 10 hard words. First is multiplication, मीन्स ये फंडामेंटल ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं, जिसमें हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. सेकेंड इज मल्टीप्लाई
आपको सिंपल एक प्रोसेस बताया गया जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसे मल्टीप्लाई कह रहे हैं, मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंड एंड देन प्रोडक्ट। ये तीन ऐसे हैं शब्द, ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको एक ही में मिल जाएंगे। मीन्स जैसे कि मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे बता दूँ दैट हियर दिस इज़ द फर्स्ट नंबर इज़ नोन एज, जो पहला नंबर होगा वो बड़ा वाला वर्ड होगा, दैट इज़ मल्टीप्लिकेंड। जो बाद वाला जिससे मल्टीप्लाई करते हैं या जो मल्टीप्लाई करता है उसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। ओके, एंड दिस विल बी दैट इज द आंसर। जो आंसर मिलता है आपको मल्टीप्लाई करने के बाद उसे क्या कहते हैं, यस, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, मीन्स आप अगर ऐसे लिख रहे हैं एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को, तो पहला नंबर मल्टीप्लिकेंड होगा, दूसरा मल्टीप्लायर एंड देन प्रोडक्ट। ठीक है, आप इसी को अगर उल्टा करके लिख देंगे 6 इंटू 5, तो उस समय अगर 6 को इधर लिख दिया तब भी जो पहला नंबर आप लिखेंगे वो मल्टीप्लिकेंड होगा, जो दूसरा नंबर होगा वो मल्टीप्लायर। ठीक है, मीन्स पहला जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड दूसरा नंबर जो मल्टीप्लाई करता है, हमेशा सेकेंड नंबर ही मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, उसे मल्टीप्लायर कहेंगे एंड जो आंसर आएगा उसे प्रोडक्ट कहेंगे। नाउ कमिंग टू नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स इतने गुना। देन कमिंग टू ऑर्डर मीन्स आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना रहता है। जैसे इसमें आप ऑर्डर देख रहे हैं ना कि ऑर्डर क्या है, लगातार एक ही नंबर चल रहा है, कितनी बार चला, 6 टाइम्स, तो आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन क्योंकि प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, तो देन एस्टिमेट आप ऑलरेडी इस वर्ड से फेमिलियर है, आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एस्टिमेट किया है। देन कमिंग टू द प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ये करा दिया। नाउ इन नेक्स्ट क्लास विल बी डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज़। आप इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए, एंड यू ऑल हैव द बुक्स, प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर till properties also, and try to have the questions solved of the first exercise. Okay, thank you class.